Welcome student in 19th lecture of vector calculus. In today's lecture we will cover second order differential functions and what is my Laplacian operator and what is a harmonic functions and two questions which are asked in examination. So for defining Laplacian operator, I am first taking scalar point functions and it is denoted by phi. And in the previous lectures we have calculated the gradient phi of this one and it is given by this expression del phi is equal to I curly phi by curly x plus j curly phi by curly y plus k curly phi by curly of z. Okay, this is my gradient phi. Now I am taking, this is a vector point function. You can apply this del with this vector point function by dot or the cross product. Here I am applying with dot to make it Laplacian operator. So I wrote here this del operator. In the previous lecture I told you this is del operator. Why it is operator? Because you can put your value here जिसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो दिस इज डॉट एज इट इज एंड डेल फाई आई रोट दिस हेयर. यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन हेयर. ठीक है. अब आई विल गोज विद आई इन द डॉट प्रोडक्ट. रिमेनिंग आई डॉट जे एंड आई डॉट के दे विल बी जीरो. सो curly by curly of x and what is the I component of del phi? That is curly phi by curly x and I dot I is here. ठीक है. Then in the second case j क्या बन जाएगा आपका? That gives you j dot j and this is curly by curly y operator and operate on curly phi by curly of y. I writing this term from here. ठीक है. Then k dot k, this is curly by curly of z and curly phi by curly of z. तो I dot I कितना होता है? That is 1. So it is 1 and you can write this is curly square curly x square phi here. In this case second order partial derivative हो जाएगा of phi and this is curly square curly of z square of phi. If I wrote this expression in this format, curly square curly x square plus curly square curly y square curly square curly z square and this phi outside. So this notation, this is del dot del, this sometime known as del square. आप इसको ऐसे भी कह सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई. यू कैन राइट दिस इज डाइवर्जेंस. देखो ना डेल डॉट है. डेल फाई को क्या लिख सकते हैं? ग्रेड फाई. दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई. तो डेल स्क्वायर कौन हुआ आपका? दिस इज माई दिस ऑपरेटर. ठीक है. समटाइम यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू डेल डॉट डेल एंड फाई. ये भी एक्सप्रेशन सेम बनेगा. ठीक है. तो व्हाट इज योर लैप्लासियन ऑपरेटर? दिस डेल डेल स्क्वायर दिस एक्सप्रेशन यानी कि डेल डॉट डेल, जो कि आप समटाइम डेल स्क्वायर फॉर्मेट में पढ़ेंगे या फिर आप इसे कह सकते हो करली स्क्वायर करली. वैसे 3 लाइंस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इसमें. सम बुक्स 3 लाइंस ड्रॉ करती हैं कि दिस इज ऑपरेटर. ठीक है. करली स्क्वायर करली ऑफ जेड स्क्वायर, दिस इज माई ऑपरेटर एंड यू कैन आल्सो राइट दिस इन समीशन फॉर्म. देखो बच्चों अगेन सिमेट्री है. अगर मैं आपको सिमेट्री फॉर्म में पूछती हूँ कि ये क्या बनेगा तो दिस इज नथिंग बट करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर. आर नोटेशन आर इक्विवेलेंट. तो डेल स्क्वायर इज माई लैप्लासियन ऑपरेटर. लैप्लासियन ऑपरेटर. ठीक है. ऑपरेटर ग्रेडियंट फाई निकाल लो, फिर उसका डाइवर्जेंस कर दो या डेल स्क्वायर डायरेक्ट अप्लाई कर दो तो यू गॉट द लैप्लासियन operator. Now let us take next question. Before starting the example, let us first define the definition of harmonic function. Here phi is my scalar point function and it is continuous and possesses second order partial derivative. यानी कि curly square phi curly x square curly square phi curly y square curly square phi by curly
जेड स्क्वायर, दे आर कंटिन्यूस एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए इसके, यानी कि आप इसका डेल स्क्वायर फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन इफ डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। समटाइम कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि what is the value of n such that this function is harmonic। तो we are doing here both work कि gradient, divergence and Laplacian operator and condition that this is harmonic। The question here is phi is given me x square plus y square plus z square, the power is minus n, find divergence gradient of phi and n if phi is harmonic function, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो प्रोसीजर है कि आप इसको ग्रेडियंट फाई कैलकुलेट करो, फिर जो आंसर आए उसका डाइवर्जेंस लो, दैट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। सो फर्स्ट आई विल डिफाइंड दिस वन, और ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। देयर इज सिमेट्री ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो आई विल स्टार्ट दिस बाय कंसिडरिंग दैट दिस एक्सप्रेशन इज आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और मैंने वेरी बिगिनिंग फर्स्ट लेक्चर लिया था, उसमें आपको बताया था टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस वन एंड आई गॉट करली आर बाय करली एक्स। ये आपको बताना है किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू एक्स बाय आर, ठीक है। कैसे किया था वो आप फर्स्ट लेक्चर वॉच कर लो, उसमें मैंने वेरी बिगिनिंग किया था इसे, और इसको मैंने कम से कम 15 टाइम तो यूज़ कर दिया होगा क्वेश्चन करते हुए। तो जहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिखाई दे ना, वहाँ आप इसको आर स्क्वायर की फॉर्म में पुट कर लो, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, समेशन साइन लग सकता है और कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अदरवाइज़ बहुत लंबा क्वेश्चन जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एग्जामिनेशन में एक पार्ट करने के लिए सिर्फ 15 मिनट होते हैं, ठीक है। तो करली आर बाय करली वाई इज वाई बाय आर। अभी आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना एग्जामिनेशन में, यू विल सॉल्व हियर lecture first। So I am using directly because I have explained this one so many times। So curly r by curly x is x by r, curly r by curly y is y by r, curly r by curly z is z by r। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखिए what is my phi, I am putting x square y square z square is r square, तो this is nothing but r की पावर माइनस ऑफ 2n, ठीक है। देन आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, दिस इज इक्वल टू, दिस इज डाइवर्जेंस का मतलब है डेल डॉट, ग्रेडियंट का मतलब है डेल फाई। तो ये क्या बनेगा, दिस इज डेल स्क्वायर ऑफ फाई। अब इसको पार्ट में नहीं करेंगे क्योंकि कंटिन्यूएशन भी है कि हार्मोनिक भी चाहिए, तो आई विल डायरेक्टली कैलकुलेट दिस वन। देन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, समीशन करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या लिखना है, फाई इज माई आर की पावर माइनस ऑफ 2n, ठीक है। अगर इसे मैं खोल देती हूँ तो क्या है, दिस इज करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर आर की पावर माइनस 2n प्लस हेयर स्क्वायर करली स्क्वायर करली वाई स्क्वायर। समीशन अगर आप एक्सपेंड करते हो, आप चाहें तो इसको एज इट रख लो, ठीक है, अदरवाइज आप इसमें समीशन खोल दो, इट्स योर चॉइस। दोनों ही केसेस में क्वेश्चन ठीक माना जाएगा, ठीक है। तो करली स्क्वायर करली जेड स्क्वायर, दिस इज आर की पावर माइनस 2n। नाउ आई विल कैलकुलेट दिस वन एंड this value and this value I will use similarly due to symmetry। तो how to calculate this one, curly square, so write this equation number 1 and calculate curly square curly x square of r की पावर माइनस ऑफ 2n। curly square का मतलब होता है curly by curly x of curly by curly x of r की पावर माइनस 2n। अब ये तो आपका डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, और हाउ टू डिफरेंशिएट दिस टर्म, आर की पावर है ना, तो पहले पोलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। क्या तरीका होता है, पावर आगे और फंक्शन एक कम, यानी 2n माइनस 1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म। हु इज इनसाइड टर्म हियर,
that is my r. So what is the derivative of this? I will write curly r by curly x first. ठीक है, तो this is equal to, देखिए minus 2n is a constant, so you can put minus 2n outside. This is curly by curly x of, देखो ये क्या बनेगा, r की पावर minus 2n minus of 2, and what is the value of curly r by curly of x? This is x by r. Balance this r with this r. I got, here is value 1. देखो ना, r की पावर minus 2n minus 1 है, तो I am writing this term as it is. So this is 1, and in place of curly r by curly x I wrote x by r. Now I am taking this above, so this will becomes r की पावर minus 2n minus 2 into x. So I wrote it here. Now again differentiate this term with respect to x. Now how to differentiate? U into v formula. So what is the derivative? Minus 2n. I am taking derivative partially with respect to x. So first u is as it is, minus 2n minus 2. Derivative of x with respect to x, that is 1. So plus, अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, यू विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ u. तो इसका क्या आएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो यू विल टेक पावर, आगे एक कम करेंगे तो minus 2n minus 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म. तो इनसाइड टर्म फिर क्या हो जाएगी, curly r by curly x. अब यहाँ मैंने किसका डेरिवेटिव किया, u का, तो v as it is. तो दिस टर्म इज as it is. मोस्टली इस क्वेश्चन में मिस्टेक, ये x आप लिखना भूल जाएंगे, तो बी केयरफुल. तो minus 2n आउटसाइड, दिस इज r की पावर minus 2n minus 2. दिस इज 2n minus 2. In place of this I can write x by r, and that x combined with this r, and here I got, this is 2n. I am taking minus outside, so plus 2. x by r पुट कर रहे हैं और उस r को यहाँ बैलेंस कर रहे हैं, तो दिस इज minus 2n minus of 4, and this is x square. So here minus of 2n is outside. This is r की पावर 2n minus 2. I am taking this term outside. तो r की पावर क्या बन जाएगा यहाँ, minus 2n minus 2 outside. Here is 1 minus, this is 2n plus 2. तो I am taking 2 outside. तो this is again 1. This is r की पावर कितना बचेगा, minus 2. So this is x square by r square. ठीक है. Similarly, due to symmetry, I can calculate here partial derivative of r की पावर minus 2n with respect to 2 times y square. So that will be equal to, क्या होगा, just in place of x you will write y. आप करके देखना, प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करोगे, योर आंसर विल बी minus 2n r की पावर minus 2n minus 2, 1 minus 2n plus 1 y square by r square. So I wrote this equation 3, and partial derivative of this term with respect to 2 times z square, change y to z. देखिए आप यहाँ y को क्या चेंज कर रहे हो, z. तो आंसर में भी r के अंदर तो सिमेट्री है, वो तो एज इट इज रहेगा. एक्चुअल चेंज उसमें भी होता है, जहाँ पे x है वहाँ y, जहाँ y है वहाँ z, जहाँ z है वहाँ x, तो वैल्यू रिमेन्स r स्क्वायर. सो हम इसको चेंज नहीं करते, तो चेंज कहाँ आएगा, दिस इज z स्क्वायर बाय r स्क्वायर. Now put substitute the value of 2, 3 and 4 in equation number 1. तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपकी, दैट इज डेल स्क्वायर 5. ठीक है, तो दिस टर्म इज कॉमन इन एवरी टर्म. So I am taking this term outside. So 2n minus 2 outside. This bracket, 1 is here, 1 is here, 1 is here. So this will gives you 3. Got? अब इस टर्म में देखिए, when you add these terms x square, y square, z square डिस्टिंक्ट है, तो इन टर्म्स में क्या कॉमन आएगा, you can take 2 टाइम ऑफ n plus 1 outside over में r square.
in this term what is here, x here. In second term this is y square, and third term there is z square. And what is the value of x square, y square and z square? This is r square, so you can cancel this by this. What I got here, this is minus 2n. Can I write this one? देखिए 3 minus 2n minus 2, तो this will gives me 1 minus of 2n, and r की पावर 2n है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, r की पावर माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज n plus 1. Take this minus outside this one, so this is 2n and this minus is balanced with this one, so I got 2n minus 1. I am taking this term below this, so can I write this is r square की power n plus 1. What is my r square? In the initially question is not in the form of r, question is in the form of x square, y square and z square, so I will give my answer in term of x square, y square and z square. So this is 2n and 2n minus 1, बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो x square, y square और z square and the power is n plus 1. ठीक है, एक तो आंसर ये होगा कि डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई क्या आएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. सेकेंड था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस फंक्शन इज हार्मोनिक. फॉर हार्मोनिक डेल स्क्वायर फाई क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए. अब हम हार्मोनिक कंडीशन से निकाल लेते हैं. अब यहाँ क्या कंडीशन है, अब देखिए n की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ है 2n माइनस 1, ठीक है, ये टर्म तो एस टी हम ऐसे ले लेंगे, तो n की वैल्यू तो यहाँ है ना, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, या तो n 0 होगा या फिर n की वैल्यू क्या होगी 2n माइनस 1 इक्वल टू 0. आई एम डिस्कार्डिंग दिस वन, n इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि इनिशियल देखिए फाई क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस ऑफ n की वैल्यू अगर हम 0 ले लेंगे तो वो कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा, फिर n पे डिपेंडेंट भी नहीं रहेगा, ठीक है. तो हम वो नहीं ले रहे, तो ओनली क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 1/2. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. is del square apply on f of r is equal to 2 by r f dash of r plus f double dash of r. ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेल स्क्वायर ऑपरेटर, दिस इज लैप्लासियन ऑपरेटर, एंड फाई ऑफ आर. आर यहाँ मेंशन होना चाहिए वैसे क्वेश्चन में कि आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, तो फर्स्ट राइट द डेल स्क्वायर ऑपरेटर. So I wrote here del square. Del square is curly square, curly x square, curly square, curly y square plus curly square, curly z square operating on f of r. You can write this is equal to, अब ये ऑपरेटर ये है, ये ऑपरेंड है, तो दिस विल कम here. तो what I got here, curly square, curly x square operating on f of r, curly square, curly y square on f of r and curly square, curly z square on f of r. अब देखिए कितना टाइम लगे है, अगर आप चाहें ना तो इसे शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हैं, मीनिंग सेम है दोनों का. ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे उससे करो. इफ़ यू डायरेक्टली रोट दिस, आई नो दैट डेल स्क्वायर ऑपरेटर इज समेशन ऑफ एक्स कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर, और इसे एक्सपेंड करके दिखा दो. ठीक है, नाउ अगेन प्रोसीजर विल बी सेम एज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल. यू वेरी वेल नो दैट कि आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्ली आर बाई कर्ली एक्स, एक्स बाय आर. तो वो सब आपने यहाँ पे 6 लाइन्स कर देनी है. ठीक है, आफ्टर देन यू विल राइट हियर, फर्स्ट वी विल फाइंड कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन एफ ऑफ आर. तो दिस इज व्हाट, दिस इज कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ, क्या होता है ये, कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ एफ ऑफ आर. तो फर्स्ट यू विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ. f is not given to me, तो फर्स्ट हाउ टू डू दिस, कर्ली बाय कर्ली एक्स आपका बाहर रहेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ r. पहले आप f ऑफ r का f का डेरिवेटिव करोगे, दैट इज f डैश, और इनसाइड टर्म क्या है, दैट इज r. तो कर्ली r बाय कर्ली x. अगर आप इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से रिलेट करो ना बच्चों, उस क्वेश्चन में आपको गिवन था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना गिवन था, -n, है ना. आपने फिर इसको कैसे लिखा था, r की पावर -2
2n। तो यानी कि आपका जो फंक्शन था वो पोलिनोमियल फंक्शन था, वो आपका रैशनल फंक्शन था जिसकी पावर -2n थी। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि ये फंक्शन आपको बस f बोल के छोड़ दिया है कि f इज़ माई फंक्शन। तो आंसर इन फॉर्म ऑफ f डैश एंड f डबल डैश की फॉर्म में बन जाए, क्योंकि फंक्शन इज़ नॉट हेयर आपके पास फंक्शन था तो आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं कि पोलिनोमियल फॉर्म में है तो पावर आगे एक कम। यहाँ फंक्शन गिवन नहीं है तो f का डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश। ठीक है, अब करली r बाई करली x की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार हम कर चुके हैं। तो दिस इज f डैश ऑफ r, करली r बाई करली x इज x बाय ऑफ r। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे। अब इसमें किसी एक को u मान लीजिए, किसी एक को v मान लीजिए। आई एम टेकिंग दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन, आई एम टेकिंग दिस इज माई सेकेंड फंक्शन। सो इसमें मैं क्या करूँगी, पहले इसे कैलकुलेट कर लेती हूँ कि ये क्या आएगा। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स बाय आर। ये वैसे है क्या, देखो करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू एक्स बाय आर थी, यानी आर का 2 बार डेरिवेटिव है एक्स के साथ। तो हाउ टू डू, यू बाई वी फॉर्मूला। तो नीचे वाला एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव इज 1 माइनस अबोव टर्म एक्स एज इट इज, आर का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ करली आर बाई करली एक्स लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे आर का स्क्वायर। तो करली आर बाई करली एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय आर। ठीक है, तो ये बाय में है, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई, तो यू गॉट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और में क्या हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया। तो आई विल राइट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन तो ये करना है ना अपने को। अब इसमें डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो पार्शियल डेरिवेटिव जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो आप कैसे करेंगे, करली बाई करली एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है आपका एफ डैश ऑफ आर। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव है तो सेकंड कैसा होता है, एज इट इज एक्स बाई आर एज इट इज, प्लस अब फर्स्ट एज इट इज यानी एफ डैश ऑफ आर, एंड आप क्या लगाएंगे साथ में डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स बाई आर। ठीक है, तो अब आपने ये एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिए, आप चाहें तो यहीं भी कर सकते हैं बट वो हमने एक्स्ट्रा कर लिया था। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे, हाउ टू एक्सपेंड दिस, हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो पहले एफ डैश है, एफ डैश का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डबल डैश ऑफ आर इंटू इनसाइड टर्म ऑफ का डेरिवेटिव यानी करली आर बाई करली एक्स, और यहाँ ऑलरेडी कौन पड़ा है एक्स बाई आर। यहाँ आपके पास क्या है एफ डैश ऑफ आर, एंड यू हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3। व्हाट इज दिस, दिस इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर ऑफ क्यूब। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, दिस इज एफ डबल डैश करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू कितनी है, दिस इज एक्स बाय आर, और ऑलरेडी एक एक्स बाय आर है तो दिस गिव्स एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस आई गॉट हियर एफ डैश ऑफ आर, एंड दिस टर्म इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर ऑफ क्यूब। राइट इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम एक्स स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करली स्क्वायर करली वाई स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ आर, क्योंकि वन इक्वेशन में तो ये पुट करना है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे आप वाई। तो व्हाट आई गोट हियर, सिमिलरली आप लिख सकते हैं, क्या लिखें, करली स्क्वायर करली वाई स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ आर। बताओ अब आपको बताना है ये कि क्या बनेगा। आई गॉट हियर, क्या चेंज करें एक्स की जगह पर वाई, राइट आंसर। सो दिस इज एफ डबल डैश ऑफ आर, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना तो आई राइट हियर वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ आर, यहाँ क्या मिलेगा आपको आर स्क्वायर
minus y square upon r cube. So write this equation 5 and similarly write the expression for 2 time derivative z. So value of partial derivative 2 time of f of z with respect to z square will be change y to z. I got equation 6. ठीक है. Now put the value of कहाँ पुट करना चाहिए 4, 5, 6 को पुट इन इक्वेशन नंबर 1. तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर. अब एक काम कीजिए इक्वेशन नंबर 4 की फर्स्ट टर्म देखो क्या है. वो है आपका एफ डबल डैश ऑफ आर. ठीक है. हर टर्म में आपका आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर आउटसाइड. तो बैलेंस क्या बचे आपके पास. फर्स्ट टर्म में क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर. सेकेंड टर्म में क्या है वाई स्क्वायर. और थर्ड टर्म में यहाँ पर क्या है जेड स्क्वायर. तो यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस. ठीक है. प्लस अब सेकेंड पार्ट में देखिए इक्वेशन 4 में बाहर कौन है एफ डैश ऑफ आर. ठीक है. और फिफ्थ में भी एफ डैश आर है. आर क्यूब हर टर्म में है तो यू कैन राइट आर क्यूब आउटसाइड. तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा आपके पास. फर्स्ट टर्म में आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सेकेंड टर्म में क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एंड थर्ड टर्म में क्या आएगा आर स्क्वायर. सो ऑन राइटिंग आई गॉट दिस वन. अब इसमें बैलेंस देखो क्या बनेगा एफ डबल डैश ऑफ आर बाय आर स्क्वायर. अब ये टर्म किसके इक्वल है बच्चों दिस इज आर स्क्वायर. तो एफ डैश ऑफ आर ओवर में क्या है आर क्यूब. आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर. तो दिस इज 3r स्क्वायर. एंड इफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ तो ये भी क्या बनेगा आर स्क्वायर. तो ये क्या आंसर देगा आई कैन कैंसिल दिस बाय दिस. एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर. आर स्क्वायर कैंसिल तो ओनली 2r and f dash of r. This is the required answer. ठीक है. And there are 5 questions in exercise. So do that. And thank you so much.